Hello, everyone. A very warm welcome to all of you on the platform of Supergets by Top Rankers. I'm Sanjay Singh, and today we are here to discuss what are the important formulas for IPMAT examination, which is going to happen. So we will see the some important formulas. Along with some important formulas, we will see some standard results as well, which can be memorized so that you can apply directly them in the examination, not deriving them because it will kill lot of time. सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि क्या ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं और मेक अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग देम, मेक अ हैबिट ऑफ अप्लाइंग देम इन द क्वेश्चन so that when the question will come in the examination, actual examination, we can directly apply them to save a lot of time. Okay, so let's see. Starting with the very basic, सबसे पहले sum of first and natural number n into n plus 1 divided by 2. Sum of square of first n natural number n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6. Sum of cube of first n natural number n into n plus 1 by 2 का whole square. Sum of first n odd number n square. First n odd number है ना? First n odd number. For example, 1 plus 3 plus 5 up to n is n square. Sum of first n even numbers. For example, 2 plus 4 plus 6 up to n. N even numbers. Okay, it is n into n plus 1. अगर सम पता है तो एवरेज भी बताया जा सकता है by dividing by the n. तो what would be the average? It is n square divided by n, that is n. And what is the average of first n even number? It is n into n plus 1 divided by n, that is n plus 1. You heard it correctly. What is the average of first 100 odd numbers? 100. Average of first n odd numbers is n only. Average of first 50 odd numbers, 50. Average of first 25 even number, 26. What is the reason? Because, sir, sum of first n even number is n into n plus 1. Average is upon divide by n plus 1. So first 25 even number, what is the average? 26. Just one more than the number. Just one more than the number. Okay. So how does they look like? Ideally, they look like 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. How does it look like? It is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube. And what is this? It is 1 plus 2 plus 3 up to n. Very easy thing. The only key takeaways from here would be this and this. Okay. Sum of first n odd numbers, average of first n odd numbers, sum of first and even numbers, average of first and even numbers. These are the two major takeaways from this page. Let's move on. Okay, this is the formula coming from time, speed, and distance. Lot of direct problems are observed from here. Direct formula based problems aate hain. So this is absolutely must to be known. I'm telling you what it is. This is if there are two places A and B, a person with the speed of SA or maybe VA is moving towards the side of B, and a person moving with the speed of VB is moving towards A with the speed of VB. The point to be noted down over here is both of them have started simultaneously. दोनों लोगों ने एक साथ स्टार्ट किया है. A वाला B की तरफ जा रहा है with the speed VA, B वाला A की तरफ आ रहा है with the speed BV. They will meet at a point P. After meeting at this point P, ये जो A वाला है, it will continue its journey or it will cover the remaining part of the journey in the time TA. Mark my word, ये VA वाला जो है, जो B की तरफ जा रहा था, ये बची हुई पार्ट को कवर करने पे TA टाइम लेगा, और ये जो VB वाला है, ये बचे हुए पार्ट को कवर करने में अगर TB टाइम लेगा, so the relation will come. Their speeds is in the inverse ratio of the square root of their time. Their speed is in the inverse ratio of square root of the time. Got my point? Yeah, absolutely important.
जो स्पीड का रेशो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ द अंडर रूट ऑफ द इनवर्स ऑफ द टाइम टेकन होगा. We can derive it as well as of now only if you want. Otherwise, you should be remembering it. Now, what is this small t? This small t is time, time to meet, time taken to meet. मतलब पहली बार मिलने के लिए कितना टाइम लगा. फॉर एग्जाम्पल, ये जब ए से इधर आ रहा था, बी से इधर आ रहा था, तो व्हाट इज द टाइम टेकन when they have met for the first time, when they have met for the first time at this p. जब वो p पर मिले तो what is that time, how much time they have taken to meet. This is under root of ta by tb. And how would we define ta and tb? ta और tb बहुत easily define हो जाएंगे. सर, after meeting, TA is the time taken by A to cover the remaining part of the journey. And what is TB? After meeting at point P, TB is the time taken by B to cover the remaining part of the journey, like this. So I hope ये relation आपको clear है और ये relation clear है. ये यहां से आ जाएगा. Now, what is the distance between, what is this total distance AB denoted by D? It is A और B, VA और BB की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. What is the relative speed? BA plus BB. And after T time they are meeting. Small t. After small t time they are meeting. So it is relative speed into time. That is VA plus BB ka relative speed. And after time t they are meeting at point P. So this. You can use this data as VA plus VB into under root of TA into TV. और ये TB TA टाइम आप ऑलरेडी जानते हैं कि what are these? They are not the time taken to cover the complete journey. They are the time taken after meeting at point P. A को बचा हुआ पार्ट करने में कितना टाइम लगता है और आफ्टर मीटिंग एट पॉइंट P, B को बचा हुआ पार्ट ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है. Absolutely important formulas, guys, all three of these. बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए. Make a short note. Write all the important things, whatever you are doing during your entire preparation in that one particular notebook. It can consist of 10 to 15 pages because there are those much of things which is needed to be recalled or which is needed to be reapplied in the question. If you want to apply them in the examination hall, you need to reapply in the question. तो ऐसे हमारे पास 50-100 पॉइंट्स रहेंगे जिन्हें हमें रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा if you want to apply them in the examination hall. Okay, let's move on. Then I have made a part for time difference formula as well. डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल टाइम डिफरेंस फॉर्मूला से. The time difference formula is distance is equal to S1 into S2 upon S1 minus S2 into time difference. It is applicable in all same distance problem. सर ऑल सेम डिस्टेंस प्रॉब्लम का क्या मतलब है? इट मींस कि लेट्स सपोज यू रेगुलरली गो फ्रॉम योर होम टू द ऑफिस, है ना? हर रोज आप जाते हैं. ऑन अ पर्टिकुलर डे यू आर गोइंग विद द स्पीड ऑफ s. On the next day you are increasing speed by 2, so you will take some less time. On the next day you are decreasing your speed by 5, so you will take more time. तो ये जो इक्वेशंस बना के जो क्वेश्चन होते थे उनमें ये डायरेक्टली एप्लीकेबल है. एंड इट रिड्यूसेस द कैलकुलेशन बाय अ लॉन्ग. ये बहुत कम कर देता है कैलकुलेशन को. वेयर S1 इज द इनिशियल स्पीड, मतलब आप किस स्पीड से पहले जाते थे. S2 इज द फाइनल स्पीड. अब आप किस स्पीड से जा रहे हो. S1 minus S2 is the difference of the speed. Obviously, sign is not important. जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे. Reason being, reason being because we are only included in the absolute difference, not the sign. And TD is the time difference. What do you mean by time difference? सर स्पीड को प्लस माइनस करेंगे, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो फिक्स है. स्पीड को कम या ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली टाइम डिफरेंस क्रिएट होगा. मतलब
अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, तो वी आर इंटरेस्टेड कि कितना टाइम डिफरेंस आया स्पीड बढ़ाने की वजह से। अगर आप स्पीड को कम करोगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। स्टिल वी आर इंटरेस्टेड इन कि इस स्पीड को कम करने की वजह से कितना टाइम डिफरेंस क्रिएट हुआ। सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। सम टाइम गाइज आई विल ब्रिंग अ क्वेश्चन आउट ऑफ हिज वेल, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी के लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो और अप्लाई इट। यू विल see lot of examples based on this when you do the practice. Okay, what about linear and circular races? लीनियर और सर्कुलर रेसेस में क्या कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए? यस, व्हाट आर दोस? इफ आई टॉक अबाउट लीनियर रेस, if A can beat B by P meters, B can beat C by Q meters, and A can beat C by R meters, मतलब हमको कहीं भी नहीं बताएगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस। सो लेंथ ऑफ द रेस इज P into Q, P plus Q minus R. Maintain the order, guys. Maintain the order. AB, BC, AC. ए बी बी सी ए सी। तो अगर ये ऑर्डर मेंटेन्ड है, ए बी को पी मीटर से हराता है, बी सी को क्यू मीटर से हराता है, एंड ए सी को आर मीटर से हराता है, देन द लेंथ ऑफ द रेस इज पी इंटू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू माइनस आर। यू कैन राइट डाउन एग्जाम्पल एज वेल। ए बीट्स बी बाय 50 किलोमीटर, बी बीट्स सी बाय 45 किलोमीटर, एंड ए बीट्स सी बाय 40 किलोमीटर। जस्ट अ मिनट। ए बी को 50 से हराता है, बी बी सी को हरा देता है, तो ए सी को ज्यादा से ही हराएगा फॉर श्योर। ए सी को ज्यादा से ही हराएगा। सो लेट सपोज ए बीट सी बाय 90 किलोमीटर। ए बीट सी बाय 90 किलोमीटर बिकॉज ए बी को हरा रहा है और बी भी सी को हरा रहा है, मतलब बी की स्पीड सी से ज्यादा है। तो जितना ए बी को जितने किलोमीटर से हरा रहा है उससे ज्यादा ही ए सी को उतने किलोमीटर से हराएगा। सो लेंथ ऑफ द रेस इज 50 इंटू 45, 50 प्लस 45 माइनस 90, 50 into 45, 95 minus 95, 450 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ द रेस। अगर आप इसे रेशो से भी करते देन ऑल्सो दिस वुड हैव बीन एन आंसर। रेशो से करते तो कैसे करते? लेट द लेंथ ऑफ द रेस इज एक्स किलोमीटर, लेट द लेंथ ऑफ द रेस इज एक्स किलोमीटर। तो ए जब एक्स चलेगा तो बी विल ट्रेवल एक्स माइनस 50, और बी जब एक्स चलेगा तो सी विल ट्रेवल एक्स माइनस 45, और ए सी को 90 से हराता है, तो ए जब एक्स चलेगा तो सी विल ट्रेवल एक्स माइनस 90। यहां से रेशियो बैलेंसिंग कर देंगे, स्पीड का रेशियो इक्वल कर देंगे, बिकॉज बी एंड सी आर मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म स्पीड इन बोथ द रेसेस। तो बी बी सी का रेशियो यहां से और यहां से सेम होना चाहिए। बाय डूइंग दिस we will again get x is equal to 450, but this was much shorter and much easier. Okay, great. Let's move on. Linear and circular races, linear and circular races। फिर से वही बात, सर्कुलर रेसेस के लिए दो कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट यू शुड बी रिमेंबरिंग, कि इफ टू पर्सन्स ए एंड बी are moving in the same direction with the speed 5:3, then how many distinct meeting points they have? In the same direction, distinct meeting points are simplest difference between the ratio of the speed 2. They have two distinct meeting points, guys. They have two distinct meeting points.
One is definitely the starting point, and another is diagrammatically opposite to it. Another is diagrammatically opposite to it. Now, if they move in the opposite direction with the speed of A and B in the ratio 5:3, now, how many distinct meeting points? 5 plus 3. Distinct meeting points जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 plus 3, that is 8. How to draw these 8 points? Again, symmetry. Starting उसका opposite, this, 1, 2, 3, 4. यहां तक तो आसान है. Now, if I talk about कि कौन सी मीटिंग कहां पर होगी, it will become an interesting problem, है ना? अगर मैं इस बारे में बात करूं कि which meeting will happen where, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम बन जाएगा. एंड लेट्स सी. दो मीटिंग पॉइंट है. फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, ओके, इन केस ऑफ टू मीटिंग पॉइंट, इन केस ऑफ एन मीटिंग पॉइंट्स, एन मीटिंग पॉइंट्स के केस में nth मीटिंग जो होता है, nth मीटिंग वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है. nth मीटिंग जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है. तो दो मीटिंग पॉइंट से तो सेकंड मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पर हुआ होगा, तो फर्स्ट यहां हुआ होगा. और हम इनको चला के भी देख सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी मीट ए विल कवर्ड 5 पार्ट, देन बी विल कवर 3 पार्ट. तो बी को 3 पार्ट कवर करा दो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. देखो यहीं पर आया बी. और ए को 5 कवर पार्ट कराओगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट. सो फर्स्ट मीटिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. यहां देखें, ए को 5 पार्ट कवर कराते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट. और सिमिलरली बी 3 पार्ट कवर करके आ जाएगा, तो फर्स्ट मीटिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. तो कोई सिमेट्री आप सोच रहे थे कि फर्स्ट डायग्रामेटिकली अपोजिट होगी या फिर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी? नहीं. इट हैज हैपेंड एट अ रैंडम पॉइंट, है ना? सेकंड, जनरली आई एडवाइस कि जिसकी स्पीड कम है, जिसकी रेशियो ऑफ स्पीड कम है, उसको पकड़ लो. बिकॉज ये हर बार मिलने के लिए 5 पार्ट कवर करेगा और ये हर बार मिलने के लिए 3 पार्ट कवर करेगा. तो व्हाई नॉट पिक द वन हु इज कवरिंग लेस पार्ट, है ना? तो बी को मैंने पकड़ लिया भाई. 1 2 3 सेकेंड मीटिंग, 1 2 3, 1 2 3 थर्ड मीटिंग, 1 2 3 फोर्थ मीटिंग. देखो एट्थ वाले में, एट मीटिंग पॉइंट में फोर्थ डायग्रामेटिकली अपोजिट आया. 1 2 3 फिफ्थ मीटिंग, 1 2 3 सिक्स्थ मीटिंग, 1 2 3 सेवंथ मीटिंग, 1 2 3 एट्थ मीटिंग. So in case of n meeting points, nth meeting happens at the starting point. तो 8 मीटिंग के पॉइंट में भी, 8 मीटिंग पॉइंट्स में भी 8th मीटिंग जाके स्टार्टिंग पॉइंट पर हुई, फोर्थ डायग्रामेटिकली अपोजिट हुई, एंड अदर्स वर, यू विल से, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फिर यहां हुई, सेकंड यहां पर हुई. इट्स अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस वन. गुड. ओके, व्हाट आर दोज थिंग्स जो आपको एवरेज में बिल्कुल पता होनी चाहिए? देर इज नो सर्वाइवल बिफोर देम. देर आर ओनली वेरी फ्यू थिंग्स. एक तो सर, एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बहुत बढ़िया बात. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे नंबर्स का सम अपॉन कितने नंबर्स हैं, दैट. ऑल्सो इफ इट इज एपी, अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस या नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हैं, तो एवरेज इज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 एज वेल. इट्स अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि if the numbers are in the AP, means having the same common difference, increasing by the same common difference or decreasing by the same common difference, average is only first plus last divide by 2. लेकिन अगर ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एनी, मतलब अगर एपी में नहीं है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एवरेज इज सम ऑफ ऑल. मतलब रैंडम ऑब्जर्वेशंस के लिए हमें सभी का सम डिवाइड बाय नंबर करना पड़ेगा. लेकिन अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो एवरेज इज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2. फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई कहे 7 14
21, 28, 35 का एवरेज, you know it's a AP of 7. It's a AP, common difference increasing by the 7. First plus last divide by 2. First plus last divide by 2. Or the middle term as well. Or the middle term as well. But my recommendation is this. What is the reason for recommending this? क्योंकि सर जब ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मिडिल टर्म देखना उतना आसान नहीं होगा जितना कि फर्स्ट प्लस लास्ट आसान होगा. तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय टू विल ऑलवेज वर्क. मिडिल टर्म विल ऑल्सो वर्क. बट मैं नहीं चाहता कि आप वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन और ऑड में परेशान हो कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उसके लिए अलग मिडिल टर्म का फॉर्मूला याद करें, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो उसके लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला अलग याद करें. आई डोंट वांट यू टू लाइक बॉदर यू अबाउट इट. So it is always first plus last divide by 2. Okay, great. Keep it up. Time and work. We all follow the LCM method. You also follow the LCM method. So there is nothing more I will want to tell you. But एक छोटा सा रिजल्ट याद रख लो टाइम एंड वर्क का, वो ये है कि if A plus B together do a work in X days, तो फिर A अकेले तो डेफिनेटली ही ज्यादा टाइम लेगा. लेट सपोज A alone is taking X plus A days, है ना. मतलब जब साथ में एक्स डेज लग रहे हैं तो ए को अलोन में तो ज्यादा ही लगेंगे, तो एक्स प्लस ए डेज. और बी को अलोन में बी अलोन टेक एक्स प्लस स्मॉल बी डेज. इसका डेरिवेशन भी बहुत आसान है, बट इट इज जनरली बीइंग एडवाइज टू रिमेंबर इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. So this value of x can be directly as under root of a into b. तो x की वैल्यू डायरेक्टली निकाली जा सकती है अंडर रूट ऑफ ए बी. For example, A plus B can do a job in X days, A can do the job in X plus 6 days, B can do the job in X plus 9 days. So, how much time A will take to do the job, or how much time A plus B will take to do the job? देखना फटाफट से. A plus B को अगर X days लगते हैं, A को X plus 6, B को X plus 9, और 9 नहीं तो इसको 4 कर लो, इसको 9 कर लो. So x is under root of AB. How much more they are taking? So 36, x 6 आ गया भाई. So together they can do it in 6 days. अगर A अकेला पूछेगा तो 6 plus 4 10. B अकेला पूछेगा तो 6 plus 9 15. Over and out. तो वो जो इक्वेशन बनानी पड़ती उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता. That part is being solved. That part is being taken care of. Okay, great. Okay, अब आ जाते हैं अर्थमेटिक में गाइस. देयर इज यू नो ऑलरेडी है ना, अर्थमेटिक डजंट रिक्वायर टू मच ऑफ फॉर्मूलाज. तो अर्थमेटिक में तो फॉर्मूलाज थोड़े लिमिटेड ही रहेंगे. नाउ आई वांट टू गिव यू सम आइडेंटिटीज which are absolutely like must to be known, and most of you already know about them, है ना. बट मैं बस जल्दी से फटाफट लिख देता हूँ. a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a square minus 2ab plus b square. Now, what are the standard results I'm driving? Just look out. I'm adding both the equations. So it is a plus b का whole square plus a minus b का whole square. दोनों को ऐड करने पर ये जो प्लस वाला और माइनस वाला कट जाएगा. So 2 times of a square plus b square. It is extremely beneficial in calculations, है ना. ये कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है. और इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, है ना, अगर मैं पहली वाली में से दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आता है. एंड व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड रिजल्ट? अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं भाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस करने पर ये चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4ab. It's a connection between sum of two quantities, difference of two quantities, and product of two quantities. So if you are aware about it, it can save a hell lot of a time, है ना. Sum of two quantities, sum of two quantities, difference of two quantities और product of two quantities के बीच में ये relation है. Sum product पता है तो difference पता चल जाएगा. Sum difference पता है तो product पता चल जाएगा.
डिफरेंस और प्रोडक्ट पता है तो सम पता चल जाएगा। और कभी कभी इंटीजर्स नहीं, इरेशनल नंबर्स पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उस केस में भी आपको लगेगा कि दो नंबर्स का सम 5 है तो नंबर्स 1 और 4, 2 और 3 होंगे, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने दो का सम 5 दे दिया और उनका प्रोडक्ट दे दिया 2, वट। तो अब जो उनका डिफरेंस आएगा वो किससे आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा, और वो एक इरेशनल नंबर भी आ सकता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक, ठीक है। अगेन, अ मस्ट डू थिंग, अ मस्ट डू थिंग। आ जाओ भाई एक और। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर minus AB minus BC minus CA. It is also one of the identity. It is also one of the identity. What is the point to be taken care here is कि if A plus B plus C zero हो जाए, if A plus B plus C is zero, तो entire right hand side will become zero. Entire right hand side will become zero. और अगर पूरा का पूरा right hand side zero हो गया, तो फिर ये भी zero हो जाएगा. So you will say A cube plus B cube plus C cube will become equal to 3ABC. बट बात यहां पर खत्म नहीं हुई है, बिकॉज अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी हो गया, देन ऑल्सो इट विल होल्ड ट्रू। इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब फिर से राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। सो देन ऑल्सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बिकम इक्वल टू 3ABC। Now, look the reverse analogy of it. अब इसकी रिवर्स एनालॉजी देखते हैं, विच आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, कि सर इस केस में भी ये हो जाता है, इस केस में भी ये हो जाता है। सो इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज गिवन एज 3ABC, आई हैव टू टेक बोथ द केसेस, है ना। अगर कभी मुझे ये बता दिया जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3ABC है, तो आई हैव टू थिंक इन बोथ डायरेक्शन, कि either a plus b plus c is 0 or a is equal to b is equal to c. 99.99% केसेस में जब प्रॉब्लम्स फॉर्म किए जाते हैं तो यही वाला केस होता है, बट वी हैव टू बी वी हैव टू बी लाइक अवेयर अबाउट दिस एज वेल, कि अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो द सेकेंड पॉसिबल केस कैन बी कि ऑल ऑफ देम कैन बी इक्वल एज वेल, ऑल ऑफ देम कैन बी इक्वल एज वेल। Great. Chalo. This is one of the thing which I also want to cover. Obviously, are you all are like in the preparation for quite some time, और एक 30-40 मिनट के सेशन में अभी तो मैं कितना ही आपको बता पाऊंगा, बट द वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज कि 40 मिनट्स में हम जो भी कुछ बातें करेंगे, 40-50 मिनट्स में जो भी कुछ बातें करेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आएंगे, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। दैट इज़ वाई दे आर कमिंग फर्स्ट इन माई ऑब्जर्वेशंस, और मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आ रहे हैं, बिकॉज दे आर मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ओके, otherwise we can form 3 4, okay, that's a great result. Are you aware about it, ki what is the area of the largest square that can be formed in a right angle triangle? What is the area of the largest square that can be formed in a right angle triangle? Obviously when the square is formed on the side of the what do you say, rectangle. So the side of that square x is, it's a square, तो फिर वो x ही है सारे, x is equal to a into b upon a plus b, where A and B are respectively the perpendicular and base of a right angle triangle, where A and B are respectively the perpendicular and base of the right angle triangle. So what is the area of that square? बहुत आसान है सर ये भी, एक्स स्क्वायर, तो इट इज ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। Question will come,
What is the side of the largest possible square which can be drawn inside a right angle triangle where the side of the square is on the side of the rectangle? Okay, so it is AB upon A plus B. इसका दूसरा देखो भाई, the area of the largest possible square, the side of the largest possible square drawn inside a right angle triangle. Now the side can be on the hypotenuse as well. Now the side can be on the hypotenuse as well. तो अब वो कितना आएगा बताओ मुझे जरा. Obviously the side is x. अब इस साइड को हम हाइपोटेन्यूज पर रख सकते हैं. यू नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल. और ये होता है c इंटू एच अपॉन सी प्लस एच. Similarity, exactly similar, guys. Exactly similar. But this h is length of perpendicular to hypotenuse, है ना? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब अगर आप इस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो दिस एच इज द लेंथ ऑफ दैट हाइपोटेन्यूज. नाउ ये जो एच है इसको भी स्टैंडर्डली याद किया जाता है कि व्हाट इज दिस एच. व्हाट इज दिस एच? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि मैं हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं एच. दिस इज ए, दिस इज बी, हाइपोटेन्यूज इज सी. सो व्हाट इज दिस एच? आप मुझे फटाक से आंसर देंगे. इट इज परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. What is this h? It is perpendicular into base upon hypotenuse. How this is being derived? This is being derived by equating the area. I hope you have seen the derivation कि half into a into b is equal to half into c into h. क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया हाफ इंटू ए इंटू बी भी होगा, हाफ इंटू ए इंटू बी भी होगा. और अगर मैं सी को बेस लेता हूं तो इट वुड बी हाफ इंटू सी इंटू एच एज वेल. तो यहां से निकल के आता है कि सी इज ए बी अपॉन h is AB upon C. So h is AB upon C. So what is the length of the largest possible square that can be drawn inside a rectangle? Obviously the side of the square is on the hypotenuse. So that x is coming as CH upon C plus h, where h in itself is, कितना है h? It is sir AB upon C. AB upon C. फटाक से. AB upon C, AB upon C. Important results, guys. Please note them, note down them. Note down them. They are important results. Ladder problem, very very famous problem. All of you might have encountered this. ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है. Similarity से होता है. From where this is being made? It is being made after after applying similarity, adding certain things, finding out the result. But what is that standard result which can be again be remembered? सर यहाँ पर भी ये जो C है, it is. And what is the reason for taking them together? Because all of them are same. Appearance is same. AB upon A plus B. C is again AB upon A plus B. C is again AB upon A plus B. इसका डेरिवेशन करना है, फिर से आप सिमिलरिटी अप्लाई करना. एक बार इस वाले ट्राइंगल में इसके साथ, फिर एक बार इस वाले ट्राइंगल में इस छोटे वाले के साथ, चुटकू के साथ, और फिर कुछ ऐड कर देना. whatever the common will come, you will get this result. Okay, great. All the three are results are same. Different problems, results are same. Different variables I have created to make them same. जैसे इसमें मैंने C के साथ H को क्रिएट किया सो डेट वो अपीयरेंस मेंटेन बना रहे. यहां पर ए बी अपॉन ए प्लस बी ऑलरेडी मेंटेन रह गया. एंड here a different variety of problem but same kind of result is coming, so definitely it is very very useful है. ठीक है, थोड़ा सा एक टाइम डिले लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू सम अदर थिंग्स.
Okay, great. Let's remain to the geometry again, guys. In any triangle, sum of any two sides of the triangle is greater than the third side. Yes, any two sides. किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना ही चाहिए. और बेसिकली इफ आई मेक इट वेरी वेरी स्पेसिफिक, तो छोटी वाली दो साइड का सम बड़ी वाली से बड़ा होना चाहिए. बिकॉज अगर छोटी वाली दो साइड का सम बड़ी वाली से बड़ा हो गया, तो बाकी ऑलरेडी बाकी सारे केसेस तो ऑलरेडी ट्रू हो जाएंगे. बिकॉज द हर्डल वाज कि छोटी वाली दो का सम भी तीसरी से लार्जेस्ट साइड से बड़ा हो जाए. तो सम ऑफ एनी टू साइड्स द थर्ड साइड. अच्छा, इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अगर एक थर्ड साइड मिसिंग है, तो हाउ टू फाइंड आउट दैट मिसिंग साइड? कि द थर्ड साइड शुड ऑलवेज लाई बिटवीन द थर्ड साइड, द मिसिंग साइड बेसिकली. The missing side should always lie between the sum of other two and the modulus difference, or you will say the absolute difference of the other two. For example, 8, x, and 15 are the three sides of triangle. 8, x, and 15 are the three sides of triangle. तो जो missing side x है, वो बोलेगा कि I should be less than the sum of other two, and I should be greater than the difference of other two, the modulus part. So I should be greater than 7 and less than 23. Okay, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी. सो इफ आई पुट अ कैप, एंड व्हाट इज दैट कैप? कि इंटीग्रल साइड चाहिए मुझे सिर्फ. आई वांट द इंटीग्रल साइड्स ओनली. तो इंटीग्रल साइड्स के लिए ऑप्शन आर फ्रॉम 8, 9 अप टू 22. 8 से लेके 22 तक वैल्यूज ऑफ एक्स कैन वेरी. सो 8 से लेके 22 तक हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? इट इज लास्ट माइनस फर्स्ट, 14 प्लस 1, 15 वैल्यूज आर देयर. So how many values are there? 15. तो x की 15 वैल्यूज हो सकती हैं. इन सच अ मैनर यू कैन फॉर्म अ ट्राइंगल. अब वो ट्राइंगल स्केलिन भी बन सकता है, आइसोसेलेस भी बन सकता है, राइट भी बन. राइट तो खैर नहीं बनेगा, बिकॉज सॉरी, राइट बन सकता है, इक्विलेटरल नहीं बनेगा बिकॉज टू साइड्स आर डिस्टिंक्ट ना. सो राइट बन सकता है, स्केलिन बन सकता है, आइसोसेलेस बन सकता है, whatever. So all the triangles are included in these 15 values, और इन these 15 values of x अलग अलग के triangles बन सकते हैं. अभी जो मैंने बताया उस पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. एंड व्हाट इज दैट? कि if three sides are integer, if all the three sides are integer, देखो जरा ध्यान से, and two sides are a and b, so number of distinct triangle formed can be twice of a minus 1, where a is the smaller of the given side. Where a is the smaller of the given side. जैसे मुझे 8 और 15 दी गई थी दो साइड. 8 or 15 were the two sides given. So how many triangles were possible? It is 2 times the smaller side minus 1. देखो जरा पीछे, क्या 15 में आंसर आया था? Yes. If two distinct integral sides were given, so twice the smaller side minus 1 are the number of triangles possible. Twice the smaller side minus 1 are the number of triangles possible. वो inequality का ही standard result बना लिया भाई, just to make things easy for you. So 20 और 30 अगर दो sides हैं, तो how many triangles can be formed? It can be twice of 20 minus 1, 39. Triangle with three integral sides. Triangle with three integral sides have the side 20 and 30. How many triangles can be formed? तो आप कहेंगे number of distinct triangle forms can be, number of distinct triangle formed can be twice of 20 minus 1, that is 39. 39 triangles can be formed. If you want to do it by the basic, तो आप basic से भी try कर सकते थे. Third side x should be lying between. Third side x should be lying between difference of other two and the sum of other two, 50. So values will range from 11 to 49. Last minus first plus 1. Last minus first plus 1. So it is 39. Here it is, guys. Straightforward, very, very easy. I hope you got this now. Oh, this page can again act as an important page for you, having a lot of information, a lot of relevant information, a lot of exam oriented information.
Largest side of the triangle is less than half of the perimeter, not equal to as well. Half of the perimeter, and the greater than or equal to one third of the perimeter. So largest side of the triangle should be lying between, largest side of the triangle should be lying between p by 2, p by 3 and p by 2. It can be equal to p by 3, but it should not be equal to p by 2 as well, क्योंकि यहाँ पर greater than equal to लगा हुआ है, यहाँ पर less than लगा हुआ है. If the perimeter is given, number of distinct triangles with integral side, अगर पेरीमीटर पता है, वेरी 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 एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम गाइस, वेरी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम, अगर पेरीमीटर पता है तो डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? इफ पेरीमीटर इज गिवन इवन, इट इज पी स्क्वायर बाय 48. Distinct triangles, distinct triangle with integral sides, and we have to take the nearest integer. For example 4.52 आया, तो what will 4.52 का nearest integer क्या है? 5. 5 is the answer. 4.45 आया, what is the nearest integer to 4.45? 4. 4.5 आएगा नहीं, तो 4.49 आएगा या फिर 4 एब्सोल्यूट मिडिल पॉइंट नहीं आएगा, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय 48 है ना. तो 48 का डिवीजन हमें एब्सोल्यूट 1 पी स्क्वायर डिवाइड बाय 48 से एब्सोल्यूट हाफ नहीं आएगा. 4.51 आएगा, 4.49 आएगा. 4.49 के लिए नियरेस्ट इंटीजर इज 4 एंड 4.51 के लिए नियरेस्ट इंटीजर इज 5. ओके, सो वी विल टेक द नियरेस्ट इंटीजर. नियरेस्ट इंटीजर, तो नंबर ऑफ, इफ p is even, p square by 48, p is odd, p plus 3 का होल स्क्वायर बाय 48. याद कैसे रखा जाता है? हाउ डू आई रिकॉल? क्योंकि सर इवन है तो इवन का स्क्वायर डिवाइड बाय इवन, बढ़िया बात है. लेकिन अगर ऑड हुआ तो ऑड का स्क्वायर डिवाइड बाय 48 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उसमें 3 ऐड कर देते हैं. ऑड का स्क्वायर डिवाइड बाय 48 थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा, इसलिए p प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, मतलब याद रखना है ना सिर्फ, तो 3 का डिफरेंस होता है, और p प्लस 3 किस में आता है? ऑड वाले में. बिकॉज p ऑलरेडी ऑड है, तो 3 ऐड होके उसे इवन बना देगा, इवन का स्क्वायर डिवाइड बाय 48. और इवन वाले के केस में p ऑलरेडी इवन है, तो इवन का स्क्वायर इवन होगा, डिवाइड बाय 48, इवन ही रहेगा नंबर. ग्रेट, मतलब हेक्स है भाई, है ना. हाँ, ओनली द हेक्स. इफ पेरीमीटर इज गिवन, नंबर ऑफ स्केलीन ट्राइंगल्स, मतलब अभी तक मैंने सारे ट्राइंगल की बात की, अब मैं सिर्फ स्केलीन ट्राइंगल्स देखना चाहता हूं. तो एक बात तो फैक्ट है, क्या? कि कम होंगे, क्योंकि सभी ट्राइंगल में तो स्केलीन भी आ जाते हैं, आइसोसेलेस भी आ जाते हैं, इक्विलेटरल भी आ जाते हैं, तो ये थोड़े कम होंगे. और कम के लिए फॉर्मूला है p माइनस 6. p से 6 कम हुआ, p माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 48, और p प्लस 3 में से 6 कम हुआ, p प्लस 3 में से 6 कम होगा, तो पहले तो p बचेगा 3 कम होने के बाद, फिर p माइनस 3. तो दोनों ही वैल्यू से 6 कम हुआ है, दोनों ही वैल्यू से 6 कम हुआ है, तो p माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 48. एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट एंड नॉट दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर एज वेल. माइंड, बिलीव मी गाइस, इतना भी कठिन नहीं है कि हम याद ना रख पाए. चलो, you can apply it. Triangle with all integral sides, two sides are 12 and 13. Find the total number of distinct triangles possible. कितने triangles possible है भाई? I think it is the silliest one. Uh, with 3 integral sides, दो sides पता है, total number of distinct triangles possible are twice the smallest minus 1. Twice the smallest minus 1. 8, 15. Number of distinct triangles, twice the smallest minus 1. 15 triangles are possible. Number of distinct triangles possible with integral sides, perimeter 10. Distinct triangles, कोई स्केलीन वगैरह वर्ड यूज नहीं हुआ है, स्केलीन वर्ड नहीं हुआ, सिर्फ डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स की बात की है, मतलब टोटल ट्राइंगल्स की बात की है. पेरीमीटर इवन है, p स्क्वायर बाय 48. इट्स p स्क्वायर बाय 48. डिस्टिंक्ट ट्राइंगल पेरीमीटर 11 है, अगर ऑड है तो p प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 48. So it is p plus 3 का whole square divide by 48. 11 plus 3, 14 का square divide by 48. And the nearest integer you have to take. So अगर आप यहाँ पर 11 plus 3, 14 का square करते हैं, so it is 196 divide by 48.
तो इसका नियरेस्ट इंटीजर लेना, अगर 4.6 आ जाए तो 5 मार्क करोगे, और अगर 4.4 आया तो क्या मार्क करोगे? 4। नंबर ऑफ स्केलीन ट्राइंगल्स विथ इंटीग्रल साइड्स पेरीमीटर 20। स्केलिंग के लिए व्हाट वाज द फॉर्मूला? 6 कम हो जाते हैं, तो पेरीमीटर क्या है? इवन। तो इवन वाले फॉर्मूले में से 6 कम, तो इट इज p माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 48। पेरीमीटर इज ऑड, तो p प्लस 3 होता था ऑड के लिए, 6 कम हो जाएगा तो p माइनस 3, 15 माइनस 3, और यू कैन से p माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 48। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये तो ऑलरेडी 3 ज्यादा होता है, तो जब 6 कम करने की बारी आई तो वहां से p से p माइनस 6 हुआ, यहां सिर्फ p प्लस 3 से 6 कम होगा तो p माइनस 3 बच जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। ओके गाइस, दो तीन चीजें और थी, तो आई एम जस्ट क्विकली स्किमिंग देम थ्रू, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो वेन एवर वी गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी, है ना। हम और भी बहुत सारे फॉर्मुलेज, बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट डिस्कस करेंगे। आवर एग्जामिनेशंस आर स्टिल हैव सम टाइम, तो उससे पहले हम डेफिनेटली एक तो और बहुत बड़े बड़े सेशंस कर लेंगे, जिसमें कि हम काफ़ी सारे और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और फॉर्मूले को रिवाइज कर पाएँ। स्टिल वी आर अर्ली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कसिंग द फॉर्मूलाज, बट एट लीस्ट वी कैन फॉर्म द हैबिट ऑफ राइटिंग दैम, है ना। दिसंबर में ये सेशन लेने का जो पर्पस है वो ये है कि एक हैबिट फॉर्मेशन तो हो जाए, सो दैट we value the formulas, we value the standard results, and we start applying them in our questions. ये कुछ एरियाज के फॉर्मूले हैं, वी वेरी वेल नो अबाउट देम। इसके ऊपर वी विल हैव अ डिस्कशन लेटर ऑन। सेंट्रॉइड्स, इनके ऊपर एक ओवरऑल पूरा सेशन करेंगे। सो all the best guys, have a great time, see you in the upcoming sessions. Till then, take care of yourself, keep studying well, keep studying hard as well, because the more you study the better you become, in terms of application, in terms of grasping, in terms of applying concept, in terms of learning concept as well. So have a great time guys, see you in the upcoming sessions. Till then, take care of yourself.